السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ سامعین اکرام، آپ کی خدمت میں ایک ایسی آڈیو لے کے آیا ہوں جو کافی دنوں سے میں اس کو فیس بک پہ سن رہا تھا، لیکن وقت نہیں مل پا رہا تھا اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے۔ اور میرے چینل پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی دنوں سے ریکارڈنگ نہیں ڈل رہی ہے، کافی بیزی تھا، لیکن اب مجھے وقت ملا تو اس کے اندر جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو آپ غور سے سنیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو ہم اس کا رد کرتے ہیں، روڈ پہ اترتے ہیں، سرکار سے گہار لگاتے ہیں، پرشاسن سے مانگ کرتے ہیں کہ اس پہ سزا کی جائے، اس کو سزا دی جائے۔ اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو جماعت سے جڑے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے اکابر جنہوں نے تبلیغی جماعت کی نیو رکھی ہے، جماعت کو شروع کیا، وہ اپنی کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کس طریقے سے کر کے گئے ہیں اور ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، اس میں جو بات چل رہی ہے، ایک کتاب ہے حفظ الایمان جو میں نے خریدی، اور میں نے جب اس کو پڑھا تو وہی الفاظ مجھے اس کے اندر ملے جو اس میں بات چل رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو جانور پاگل سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اب ایسے اکابر کو اگر کوئی سپورٹ کرے تو اس کو جوتوں سے نہیں مارا جائے گا؟ ایسے عالم کو کوئی عالم کہے تو اس کو جوتوں سے نہیں مارا جائے گا؟ بالکل مارا جائے گا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسے گروہ سے جا کے جڑتا ہے جو چور ہوتا ہے تو کیا اس کا شمار چور میں نہیں کیا جائے گا؟ بالکل کیا جائے گا۔ اب کوئی ایسا گروہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے اور اس کے ساتھ رہ کے، اس کے پیچھے نماز پڑھ کے اور اس کو اکابر اور عالم مان کے، تو کیا وہ گمراہ نہیں ہوگا؟ وہ گناہگار نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ اب جب اس کی پوری تحقیق میں نے کی تو میں نے جب دیکھا کہ تبلیغی جماعت کو جب سعودی عرب میں بین کیا گیا، وہاں سے نکالا گیا، تو وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی، ایسی ایسی کتابیں انہوں نے جو لکھی ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہاں سے بین کیا گیا۔ اور آپ نے ابھی دیکھا کرونا کال میں کس طریقے سے ان جماعتیوں نے تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو بدنام کر دیا اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں پہ ایک ایسا بم پھوڑ دیا کہ ٹھیلا لگانے والے، ریڑھی لگانے والے، جو بیچارے بھولے والے مسلمان، جو صوفی مسلمان ہندوستان کے رہنے والے مسلمانوں پہ انہوں نے آفت ڈال دی۔ جگہ جگہ سے ہندوستان میں آ کے، کون کون سے دیش کے کونے سے یہاں پہ آ کر کے جماعت کو پھیلا کر کے انہوں نے آفت مول ڈال دی تھی۔ تو آپ یہ بتائیں مجھ کو کہ کیا کس نے؟ چند لوگوں نے، مولانا سعد کے چند لوگوں نے کیا، اور اس کا بھگتان تمام ہندوستان کے مسلمانوں نے بھگتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی جماعت ہے جس کا اکابر ہی حضور کی شان میں گستاخی کرے تو کیا اس اکابر کی رد نہیں کیا جائے گا؟ کیا اس اکابر کو اکابر کہا جائے گا؟ جو اس کا ڈیفینس کرے گا اس کا بھی رد ہوگا۔ تو یہ ریکارڈنگ میں اپنے چینل پہ ڈال رہا ہوں، آپ اس کو سنیں کہ کس طریقے سے یہ تبلیغی جماعت کے لوگ اپنے اکابروں کے کفر کو تو چھپاتے ہیں، لیکن آج دکھاوے کے طور پہ اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یہ لوگ روڈ پہ اتر آتے ہیں۔ یہ صرف دکھاوا ہے، ایک چھلاوا ہے۔ تو جس طریقے سے ان کے لیے پرشاسن سے ہم مانگ کرتے ہیں، کیا ان کے لیے مانگ نہیں کریں گے؟ کیا اس جماعت کو ہندوستان میں بین نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ تو آئیے اس ریکارڈنگ کو آپ سنیں اور فیصلہ کریں کہ کیا یہ تبلیغی جماعت جو ہندوستان میں پنپ رہی ہے، دنیا سے آ کر کے یہاں پریشان کرتی ہے لوگوں کو، کیا اس کو بین نہیں کرنا چاہیے جیسے سعودی عرب نے اس کو بین کیا؟ بالکل کرنا چاہیے۔ تو ہماری پرشاسن سے یہی مانگ ہے کہ تبلیغی جماعت کے اوپر نظر رکھی جائے۔ یہ کہاں سے آتے ہیں، کدھر سے آتے ہیں، نہ ان کی آئی ڈی کا پتہ ہوتا ہے، نہ ان کے دستاویزوں کا پتہ ہوتا ہے، اور یہ ہندوستان میں آتے ہیں اور جگہ جگہ مسجدوں میں جا کے ہندوستان کے لوگوں کو برگلاتے ہیں، بہکاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی مسجدوں میں ان کو آنے سے روکیں، ان کو بھگائیں، اور اپنے بچوں کو، اپنے احباب کو ان سے بچائیں، ان کے عقیدے سے بچائیں۔ اتنا گندا عقیدہ لے کے یہ گھوم رہے ہیں، اور ان کے عقیدے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ سے یہ جلال الدین صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہلو، ہاں بولیے۔ جی اسلم صاحب، ہاں بولیے، کون بات کر رہے ہیں؟
मैं शेख जलालुद्दीन चिश्ती बात कर रहा हूँ। आपको किताब भेज दिया था आपको पढ़ने के लिए, अशरफ अली थानवी की किताब जी हिफ्जुल ईमान। जी आप उस किताब को पढ़ लिए? हाँ पढ़ लिया हूँ। तो उसमें जो कुफरी अकीदा लिखा हुआ है कि नबी के जैसा इल्म पागल और जानवर को भी हासिल है, हाँ तो ये क्या कुफरी अकीदा नहीं लग रहा है? नबी की शान में गुस्ताखी नहीं लग रहा है आपको? सबसे पहले हजरत देखिए, मैं आपके सवाल का अधूरे सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता हूँ। आपको अगर सवाल समझ में नहीं आया तो ये आपकी मजबूरी है, आप जाके किसी मदरसे में इल्म हासिल सवाल कीजिए। यहाँ सवाल क्या है? मेरा सवाल क्या है? आप दूसरी बात कर रहे हैं। सवाल मुझे समझ में आया तभी तो। यहाँ पर नबी के इल्म के जैसा पागल के इल्म तशबीह देना, पागल के इल्म से नबी के इल्म को तशबीह देना गुस्ताखी है। सवाल क्या है, जवाब क्या है, वो बहुत लंबी बहस है। पूरी किताब सवाल का जवाब है, मैं समझता हूँ पूरा। मैं सवाल भी समझा, जवाब भी समझा, लेकिन यहाँ पर नबी के इल्म से तशबीह देना गुस्ताखी है। मौजू दूसरा है, आप दूसरे मौजू उठा रहे हैं। सवाल जवाब पर हमारी बात नहीं है। किसी ने सवाल किया, अशरफ अली थानवी ने जवाब दिया। हाँ, जवाब भी तो सही दे रहे हैं। जो जवाब दिया है ना, हाँ जवाब क्या दिए हैं? बाज उलूम गैबिया, अगर हुजूर बाज उलूम गैबिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, कुल उलूम गैबिया नहीं है, बाज उलूम गैबिया, तो अल्लाह ताला के एतबार से बाज उलूम गैबिया बेशक हम भी मानते हैं। अल्लाह के बराबर इल्म हुजूर को नहीं है, लेकिन उसमें तशबीह देना गुस्ताखी है। तशबीह, जैसा आपके बारे में मैं कहूँ आपके दांत कुत्ते की दांत की तरह है, हालांकि दांत आपके हैं, आपके दांत भी सफेद है, कुत्ते की दांत भी सफेद है, तो क्या ये गुस्ताखी नहीं होगी आपके सामने? सफेद दांत का होना गुस्ताखी नहीं कहलाता है हजरत। कुत्ते की दांत की तरह कह दूं आपकी दांत, आपके कान गधे की कान की तरह कह दूं तो ये आपकी गुस्ताखी नहीं है? रजील चीजों से तशबीह देना गुस्ताखी कहलाता है। यहाँ पर मौजू सिर्फ तशबीह मौजू है। बात तो सुनने की ताकत रखिए, आप बात समझना नहीं चाहते तो फिर समझाएंगे। हाँ, मैं समझता हूँ, जो बोलिए बोलिए, मैं बात समझिए। अगर कहने वाला इंसान है और इंसानियत के नाते वो समझाना चाहता है, और समझने वाला अगर गधा है तो गधे को क्या समझाएंगे? गधे के पीठ पे किताबें लादने से क्या मतलब होता है? क्या आलिम बन जाएगा? समझ रहे हैं? हाँ, तो समझने वाला अगर गधा है तो उसकी मजबूरी उसकी है, समझाने वाले की नहीं है। ये आप किस लिहाज से कह रहे हैं? तो आपने जैसे कहा ना कि हमारे दांत सफेद हैं, तो क्या कुत्ते के दांत सफेद होने की तशबीह दी जा सकती है? तो हम वही तशबीह आपको दे रहे हैं। समझ में आई आपकी बात? नहीं, तशबीह वो तशबीह दे रहे हैं तो आपको बुरा लगा तब जो तशबीह दे रहे हैं। पहले आपको बात करने का तरीका किसने सिखाया ये बताइए मुझे आप। आपके अशरफ अली थानवी ने सिखाया। आपको बात करने का सलीका किसने सिखाया? मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे। नहीं, आप बताइए, नबी के इल्म को गधे के इल्म से तशबीह देने से आपको बुरा नहीं लग रहा है, और आपकी कान को गधे की कान की तरह कहने से, आपकी दांत को गधे की कुत्ते की दांत की तरह कहने से आपको बुरा लगा। मैं क्या यही तो गुस्ताखी है, गुस्ताखी है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि नबी के इल्म को, आपको बात करने का तरीका किसने सिखाया है? ये सलीका है बात करने का। तो आपका भी तो ऐसा ही सलीका है जैसा सलीका। मैं तो आपको क्या सवाल कर रहा हूँ, आप आपस से बाहर हो जा रहे हैं। समझो, वहाँ पे आपका बीपी हाई होता जा रहा है। देखो, आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो वो आपकी परेशानी है, समझ में नहीं है। 100 साल से एक आवाम को भी समझा नहीं पा रहा है, ये अकीदा आवाम से छुपाया जा रहा है। तभी तो किताब को समझाने की जरूरत, किताब में खियानत करके तहरीर किया गया। नई किताबें जाओगे ना तो नहीं समझ में आती है, समझे? मौलवी साहब, चलो हम दुश्मनी में हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप अपने किताब लिखे, अपने आवाम को तो समझा सकते थे। किताब में तहरीर करने की नए एडिशन में किताब बदल दिया गया। नए एडिशन में कुछ इबारत को हटा दिया गया। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आप गलती थी तभी तो हटाया गया, वरना हटाते क्यों? थानवी की गलती थी। तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि तुम बात को सुनना नहीं चाहते हो, समझे? मैं सुनता हूँ तो आप सही बात नहीं बताते। तो सुनाइए, सुनेंगे तब ना बात पूरी समझ में कि पहले सुनाइए जनाब, सुनाइए। इस वक्त जरूरी जो चीज है पहले अवाम को वो समझाइए, समझे? इस वक्त क्या जरूरी है? सुनो, अवाम अगर पहली क्लास का बच्चा अगर सामने है तो उसको पहली क्लास के एतबार से समझाया जाएगा, दूसरी क्लास का बच्चा है तो दूसरी क्लास के एतबार से समझाया जाएगा, 10th क्लास का बच्चा है तो 10th क्लास के हिसाब से समझाया जाएगा, समझे?
बात आ रही समझ में आपके? हाँ समझ में आ रही है। हाँ, तो पहले इस वक्त उम्मत किस अंदाज कहाँ पे है, पहले वो देखिए। उम्मतों के बीच में झगड़ा लगाना, ये अशरफ अली थानवी काफिर है, ये तबलीग वाले काफिर हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे, वो छोड़िए। जो नबी ने चाहा था, जिस प्लेटफॉर्म पे हमको लाना चाहा था उम्मत को, पहले आप उम्मत को वहां लाने की कोशिश कीजिए, समझे? अच्छा। तब जाके उम्मत के समझ में आएगा कि अशरफ अली थानवी ने क्या कहा है। नहीं, तब समझ में अशरफ अली थानवी ने जो कहा है उसी वजह से उम्मत की आज ये दुर्दशा है, उम्मत की हालत इतना बिगड़ गई कि उम्मत एक दूसरे के दस्तगिरीबान है। आप बात कह चुके ना, आप बात कह चुके, मुझे कहने नहीं दे रहे हैं। अभी आपकी बात मैंने पूरी गौर से सुना। देखो, आप सुन नहीं रहे, आप सुन नहीं रहे। बोले साहब, आपकी बकवास सुनने के लिए हमने कॉल नहीं किया, आपसे सवाल भी पूछेंगे, आप भी मेरा सुनोगे, मैं भी आपका सुनूंगा। करना नहीं है, आप कौन है हम जानते नहीं है। मैं सुनिए ना, आप ये जो बता रहे उम्मत की हालत किसी लिहाज से भी नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त की जा सकती है। तो ऐसे मैं पूछ रहा हूँ अशरफ अली थानवी ने नबी के इल्म को पागल और जानवर के इल्म की तरह कहा, उसके जवाब देने के बजाय इधर उधर भाग रहे हैं। कहीं उम्मत के हालात तो इसीलिए पेश आए, तुम लोगों ने उम्मत को बांटा। उम्मत सारे एक थे, उम्मत सारे अहले सुन्नत व जमात थे। तुम देवबंदी फिरका, अंग्रेजों की मदद से देवबंदी फिरका पैदा किए, अंग्रेजों से 600 रुपया तनख्वाह लेकर, उसी तनख्वाह की अंग्रेजों के इशारे पर यह किताब लिखी गई, नबी की गुस्ताखी, जिसमें लिखा गया नबी के जैसा इल्म पागल और जानवर की तरह है। और जब नबी के इल्म को पागल और जानवर की तरह कहना गुस्ताखी नहीं है, तुम कह रहे हो, तुम्हारी दांत को कुत्ते की दांत की तरह कहने से तुम्हारी गुस्ताखी हो जाएगी और तुमको बुरा लगा। गधे की कान की तरह तुम्हारा कान है, ये तुम्हारी गुस्ताखी हो जाएगी। तो कोई रजील चीज से तशबीह देना ही गुस्ताखी है, समझे मौलवी साहब? कट करके भाग गया। अब देखिए, ये साकली के जिस शहर में मैं रहता हूँ, यहाँ के देवबंदी मस्जिद के मौलवी है, इसको मैंने किताब देके भेजा। वहाँ का एक लड़का आया था यहाँ नमाज के लिए, उसने कहा कि देवबंदी बरेली क्या इख्तिलाफ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझाइए। तो मैंने किताब दिखाया, देखो असल गुस्ताखी नबी की शान में गुस्ताखी है, असल जो गलती है दोनों में इख्तिलाफ नबी की गुस्ताखी की वजह से है, नमाज रोजा का इख्तिलाफ नहीं है। तो मैंने किताब दिखाया, किताब देखकर वो शख्स कहने लगा कि ऐसी बात तो कोई मुसलमान लिख ही नहीं सकता। मैंने कहा बेशक, इसीलिए हम कहते हैं ऐसा लिखने वाला काफिर है। तो वो पहले कहने लगा कि ये तो किसी और ने लिख दिया होगा तबलीग वालों को बदनाम करने के लिए, किसी कादियानी ने लिख दिया होगा या शियाओं ने लिख दिया होगा। मैंने कहा किसने लिखा, वो खुद तुम्हारे मौलवी को किताब दो, वो खुद देखकर बता देंगे किसकी किताब है। कादियानी की होगी तो भी बता देगा, और अगर उनकी अपनी किताब होगी तो भी बता देगा। तो मैंने किताब देके भेजा, पढ़ने के बाद 2-3 दिन किताब को रखा, फिर उस लड़का के हाथ से किताब वापस भेजा और बोला कि मौलवी साहब को पढ़ना नहीं आता, मौलवी साहब को पढ़ने बोलो किसी मदरसे में जाकर, मेरे बारे में कह रहा है। अब किताब इसको पढ़ने आ रहा है और कह रहा है कि समझने की सलाहियत नहीं है। अरे तुम्हारे पूरी जुर्रियत में किसी को समझने की सलाहियत नहीं थी, तब जाकर किताब को बदल दिया है आप। अब 100 साल से झगड़ा चल रहा था, थानवी के जमाने से किताब पर झगड़ा हो रहा था। थानवी को चाहिए था तौबा करके मरता, किताब को खुद अपने हाथ से बदल देता। थानवी उसी पर डटा रहा, मर गया। और थानवी के मरने के बाद भी उस किताब को लेकर हमारे पास उस किताब का डिफेंस करता रहा, उस किताब का दिफा करते हुए हमसे लड़ते रहे ये देवबंदी लोग। आज जाकर 15-20 साल से उस किताब के जो न्यू एडिशन आ रहा है, उस न्यू एडिशन में किताब को बदल दिया है, न्यू एडिशन में किताब को चेंज कर दिया। अब हमारा सवाल ये है, अगर थानवी ने सही लिखा था तो तुमने बदला क्यों? तुमको बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? और ये खयानत करना, किसी मुसन्निफ का, राइटर की किताब को बदलना किसी को हक नहीं है किसी को भी हक नहीं है। गवर्नमेंट की भी कोई किताब हो या किसी भी धर्म की किताब हो, किसी भी राइटर की, किसी भी इतिहासकार की किताब हो, उसको बदलने का हक किसी को भी नहीं है। अब अशरफ अली थानवी गलत लिखकर मरा, तुम उसको बदल रहे हो,
तो थानवी सही साबित हो जाएगा? नहीं थानवी के अमल, उसकी अकीदा तो गलत साबित हो चुका है। जी अब तुम वो मरने के बाद उसकी अकीदा को तुम सुधार नहीं सकते। जी इंसान को सुधरने का मौका जिंदगी में है, मरने के बाद नहीं। अब थानवी को काफिर मानने के बजाय थानवी की किताब पे चोरी करके किताब के तहरीर कर रहे हैं। और हम जब समझना चाहते हैं, नहीं तुम समझ नहीं सकते। अरे तुम्हारी किताब कम से कम तुम तो समझ के लोगों को बताते, तुमको भी समझ में नहीं आ रहा है। और समझ में आ रहा है, बेशक समझ में आ रहा है इनको, ये चोर है, अकीदे का चोर है, कॉल कट करके भागा ना, कभी भी समझा नहीं सकते। पूरा चैलेंज करके कहता हूँ, इस शहर के देवबंदियों की नींद हराम हो चुकी है। अब इनको जवाब देना होगा, और जवाब नहीं है तुम्हारे पास तो देवबंदी धर्म को लात मारो, देवबंदियत को मुसलमान बन जाओ, सच्चा मुसलमान बन जाओ। ये तुम्हारे ईमान अकीदा नहीं है, तुम्हारा इस्लाम के खिलाफ तुम्हारा किताब है। ये इस किताब में लिखा हुआ है नबी के जैसा इल्म पागल को भी है। आप बताओ, नबी के जैसा। अब मैं उसको बोला कि तुम्हारे दांत के जैसा कुत्ते का भी दांत है। तो कितना गुस्सा करा, देखिए। किसी भी इंसान की चीज को जानवरों से, रजील चीजों से तशबीह देना, ये गुस्ताखी होता है। बराबर। और नबी की गुस्ताखी कुफर है। नहीं, ये लोग तावीलें पेश करते, हजरत नहीं मानते, गुमराह लोग हैं। कोई तावील इसमें है ही नहीं। ये इबारत पूरा साफ सुथरा उर्दू इबारत है। उर्दू क्लास वन के बच्चों को भी किधर से भी कान खींचते हो, ठीक है, मगर वो नहीं हो सकता हो। अब क्या, अब कितनी लंबी घुमाने की कोशिश कर रहा था कि 1 क्लास के बच्चों को 1 क्लास का ही इबारत समझाया जाएगा, 10 क्लास के बच्चों को 10 क्लास के इबारत ही समझाया जाएगा। अरे ये उर्दू किताब है, आम लफ्जों में, साफ लफ्जों में गुस्ताखी है। और गुस्ताखी जिसमें साफ वाज़ेह है, उसमें तावील की गुंजाइश नहीं है। जी, मगर वो करते ना, क्या? कौन सी तावील? कोई तावील नहीं है इसमें। नबी के जैसा इल्म नबी को है, ऐसा तो पागल और जानवर को है, माज़अल्लाह। नहीं तो हजरत वो क्या बोलते हैं वहाँ, ऐसा लफ्ज है तो ऐसे से मुराद जैसा नहीं होता बोलते हो। यहाँ वहाँ आके पकड़ते हो, लेकिन वो नहीं पकड़ सकते। किसके इल्म के बारे में बात हो रही है? ऊपर जो इबारत है, एक पूरा आधा सफा में, ऊपर से किसके बयान हो रहा है? इल्म का बयान। इल्म गैब का ही चल रहा था ना। इल्म गैब किसका? अशरफ अली थानवी का, गंगोही का, आला हजरत का, या मुजद्दिद अल्फसानी का, गरीब नवाज का, या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? किसका बयान हो रहा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही चल रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान हो रहा है। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बयान करते करते आगे जाकर ऐसा इल्म, हुजूर के इल्म के जैसा इल्म, हुजूर के इल्म को बयान करके बताया कि हुजूर के इल्म जैसा इल्म पागल को भी है, जानवर को भी है। अब कॉल कट करके भागा। अब इसको भागने नहीं दूंगा। इस गांव में इंशाल्लाह लोग इसको पकड़ के खींच के लाएंगे हमारे पास। जी। इसको खींच कर हमारे पास लाएंगे, आमने सामने बिठाएंगे और बताएंगे कि किसको समझ में आता है, किसको समझ में नहीं आता है। इंशाल्लाह बताया जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब जिस शहर में हूँ, जहाँ भी जाता हूँ ना, देवबंदियों की नींद हराम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ इनकी नींद हराम हो चुकी है। जी। तो इसका रिकॉर्डिंग भेज दो आपको। हाँ, रिकॉर्डिंग मैं भी कर दिया पूरा मुकम्मल, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यूट्यूब पे डालूंगा। ठीक है, चलिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।